بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. سید خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اپوزیشن لیڈر ہیں, پاکستان کے ناؤن لیڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ایک پوری تاریخ ہے یہ سیاست کی, اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے, جس طرح پی ٹی آئی کے رہنما کل آپ کے پاس آئے, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی, اور دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک صفحے پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو وہ جو ایک دشمنی تھی, جو اختلافات تھے, جو ناراضگی تھی, وہ ختم ہوگی؟ شاہ صاحب دیر آئے درست آئے. اگر پی ٹی آئی نے اچھی بات سوچی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, کیونکہ میرا ایک رول ہے, تو میں تو چاہوں گا کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہم مل بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں, اور جو حکومت جو ہے اس کو ان ایشوز پہ جس پہ حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی, جو پبلک ایشوز ہیں, جو ملک کے ایشوز ہیں, وہ ہماری ڈویژن کی وجہ سے اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا تھا اور ہوتا ہے. اگر ہم ان ایشوز پہ ایک ساتھ مل بیٹھ کے موو کرتے ہیں تو نیچرلی یہ پارلیمنٹ کی بھی خوبصورتی ہے, اور مگر ملک کے لوگوں کے لیے بھی اس کا بڑا اچھا ریسپانس پبلک سے بھی ملے گا. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور بہتر فیصلہ ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہاں تک ہم چلتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ عمران خان کو اعتماد میں لے کے شاہ محمود قریشی صاحب یا اس کی ٹیم کل آئی ہوگی. اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جب تک یہ اعتماد میں نہیں لیا ہوگا, کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک پالیسی ہے, اپنی ایک سیاست کا طریقہ ہے, کبھی کبھی وہ کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو شاید اس کا جواب دینا بھی پڑتا ہے. لیکن سر, عمران خان صاحب کا مزاج دیکھیے اور عمران خان صاحب کا ماضی دیکھیے, جس طرح وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرتے رہے, جو دھرنے کے درمیان وہ, اور اس کے بعد جو آپ کے بارے میں کہتے رہے, آپ کے جو دوسرے کولیگز ہیں ان کے بارے میں کہتے رہے, کیا عمران خان صاحب اس ماضی کو فراموش کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں ان کے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ تو آئے, ان سے کافی بات ہوئی, اور یہاں تک بھی ہوئی کہ ہمیں ہر مہینے میں ایک دفعہ آل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں, جس میں جماعت اسلامی بھی ہے, جس میں شہپور صاحب بھی ہیں, جس میں کیو لیگ بھی ہے, جس میں جماعت اپنا آپ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, اور اے این پی بھی ہے, ہم سب کو مل کے پھر بات چیت کرنی پڑے گی, ایشوز پہ ڈسکس. سر شرائط کیا ہوں گی اس اتحاد کی؟ کیا آپ دھاندلی کے خلاف اتحاد کریں گے؟ کیا آپ میاں نواز شریف صاحب کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے خلاف آپ کا اتحاد ہوگا, یا ان کی فارن پالیسی اس کے خلاف اتحاد ہوگا, کرپشن کے خلاف اتحاد ہوگا, بدعنوانی کے خلاف اتحاد ہوگا؟ کس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ اتحاد نہیں ہے, یہ اپوزیشن ہے. اتحاد تو پارٹیوں کا باہر ہوتا ہے, یہ اپوزیشن ہے. یہ اپوزیشن کا اتحاد ہے. اپوزیشن اس کا ایجنڈا کیا ہے سر؟ ایجنڈا اس کا جو ملک میں چیزیں ہو رہی ہیں, یا جو ایسے کام ہو رہے ہیں, یا ایسے ایشوز آ رہے ہیں, یا ایسی پالیسیاں فارن پالیسیاں بنتی ہیں, ان میں ہم ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بدعنوانی بھی شامل ہے, کرپشن بھی شامل ہے, ہر چیز شامل ہوگی. اور کیونکہ اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, وہ رول اگر ڈیوائیڈڈ ہو جائے, الگ الگ ہو جائے, 3-4 پارٹیز آ جائیں, جیسے ہمارے یہاں ایم کیو ایم بھی ہے, مجھے ان سے بھی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی تک وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہے, ان کو بھی شامل کریں گے آپ؟ کریں گے, تو کوشش کریں گے. مگر دیکھیں, یہ اتحاد کسی حکومت کے لیے یا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے نہیں ہے, یہ اپوزیشن کے رول کو مؤثر بنانے کے لیے ہے, جو تقریباً 2.5 سال سے ایک تاثر تھا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور اس تاثر کو بھی ہمیں آپ حکومت پہ صرف پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اچھائی کی طرف, بہتری کی طرف, اس کو گرانا نہیں چاہتے, ہٹانا نہیں چاہتے, اور اگر عمران خان صاحب ہٹانا چاہیں گے تو آپ اس اتحاد کا حصہ نہیں رہیں گے پھر؟ دیکھیں, عمران خان جب ہٹائیں گے تو ہم سے بات کریں گے کہ ان کے ریزنز ہوں گے کیوں ہٹایا جا رہا ہے. ہم اگر کسی کو ہٹانے کا بہترین ڈیموکریٹک سسٹم یہ ہے کہ پھر ان کے لیے ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, تحریکیں چلا کے یا کسی سے بات چیت کر کے, کوئی ماضی کی طرح جو ماضی میں یہ چیز ماننی چاہیے کہ 80s کے بعد ایک ایسی سیاست چلی تھی کہ کبھی تم کبھی ہم, کبھی تم کبھی ہم, اور ہم کرتے رہے اور کوئی نہیں رہا, آخر کار ہم سب چلے گئے. تو اس ساری چیزوں سے ہٹ کے ہمیں
फैसले करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इत्तेहाद अपोजिशन का बन रहा है, ये बेसिकली हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बन रहा, सिस्टम को चलाने के लिए बन रहा है। एग्जैक्टली हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। हुकूमत जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि हुकूमत जो है न्यू टैक्सेस लगाना चाहती है 40 बिलियन की, तो उस पर भी हमारी बातचीत हुई है कि हमें उस पर भी एक लाएअमल तैयार करना पड़ेगा कि हुकूमत हर तीसरे महीने दूसरे महीने कोई न कोई टैक्सेस लगाना चाहती है। ठीक, तो ये प्रेशर ग्रुप है बेसिकली, हुकूमत जो गलतियां करती है उसको। अपोजिशन का एक फर्ज बनता है कि जो टैक्सेस लग रही है वो टैक्सेस आवाम के ऊपर लग रही है, और हम आवाम से मैंडेट लेके आए, और हमें मैंडेट है कि हम अपोजिशन में बैठ के उनकी नुमाइंदगी करें जो लोग उसके। अच्छा साहब, थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चले जाते हैं कि पाकिस्तान का माजी रहा है कि जब भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होता है और पाकिस्तान उसमें कोई रोल अदा करना चाहता है तो वो फैसले या फिर ऐवान सदर में होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं या फिर GHQ में होते हैं। अब भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है टर्की और रूस के दरमियान, और पाकिस्तान उसमें अफेक्ट होगा क्योंकि रूस के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं और तुर्की के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे सारे इशू में, तो जाहिर है पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि उसने इसमें क्या रोल अदा करना है। तो आप ये चाहेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर लें, फौज GHQ में इसका फैसला करना है, या इसका फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए? जहाँ साहब बात यह है कि तुर्की के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, वो तकरीबन सदियों से एक रिलेशनशिप चलता आ रहा है, और नेशन बाय नेशन हम इसको रिलेशनशिप को चलाया है, और रूस भी नेचुरली किसी न किसी जगह पे हमारा नेबरिंग भी बन रहा है जी। तो इन हालात में मैं समझता हूँ मैं नवाज शरीफ को मशवरा दूंगा कि ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने कलीग से भी बात कर ले, ये GHQ में बात कर ले, प्रेसिडेंसी में बात कर ले, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है जहाँ पे इनको पहले भी सेविंग मिल चुकी है, सेव हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट में अगर इस इशू को ले आए तो मैं समझता हूँ उस पार्लियामेंट का जो टोटल ही जो इमेज बनेगा, जो उस पर राय आएगी, वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सपोर्टिंग पोजीशन होगी कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है ये फैसला करती है। आपको याद होगा कि एक ऐसा वाक़या तुर्की में हुआ था, तो तुर्की की पार्लियामेंट ने फैसला किया था, तो सबने मिलकर फैसला किया था। तो आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए फौरी तौर पे, ताकि इस मैं ज्वाइंट सेशन के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, और उस पे, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं इस वक्त में बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये तुर्की और सिर्फ रशिया का मसला है, रूस का मसला है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता। ये बहुत आगे निकल जाएगा मसला, और जो इस वक्त जाहिर साहब आप देख लें जो मुस्लिम उम्मा का मसला है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक डिस्परेट होता जा रहा है। यानी आप देख लें कि ईरान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, अब जॉर्डन की तरफ जा रही हैं चीजें। अभी जॉर्डन तो चलो थोड़ा सा सेव है, उधर जा रही है, आगे इजिप्ट का प्रॉब्लम, जॉर्डन आ जाएगा, लेबनान, इराक, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पे कहीं फंसी हुई है, और इसको देख के सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब एक ज्वाइंट सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, और वहां फैसला करें कि वो टर्की और रूस के दरमियान हमारा मौकफ क्या होगा? मेरी तो राय ये है कि ज्वाइंट सेशन के साथ पाकिस्तान एफर्ट्स करे, और बड़े फुल एफर्ट्स करे, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को फास्ट ट्रैक पे दुनिया का मुस्लिम कंट्रीज़ का टूर करना चाहिए, और जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में किया था जब इजराइल और इजिप्ट का वार हुआ था, तो उस वक्त उसने टूर किया था दुनिया को, फिर उसने मुस्लिम उम्मा को एक जगह पे जमा किया था। तो अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए और इतना दबाव डाले कि वो OIC की एक मीटिंग हो जाए जहाँ मुस्लिम ममालिक बैठ के अपना रास्ता निकालें कि हमें किस तरफ जाना। बिल्कुल सर, मैंने ब्रेक लेनी शाह साहब, और ब्रेक के बाद ये लोकल जो इश्यूज हैं जो बहुत आजकल बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार लोग उन सवालों का जवाब चाहते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب, آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کوٹیکنا کیس جو وہ فارغ ہو گیا, نیب ثابت نہیں کر سکی, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان ناکام ہوگی, آپ آزاد ہو گئے, آپ کو مبارک ہو 18 سال بعد. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی جیت ہے یا ایک پارٹی کی جیت ہے یا آصف علی زرداری صاحب کی جیت ہے, یہ پوری ریاست کی ناکامی ہے؟ دیکھیں, میں جیت اور ہار میں تو نہیں جاؤں گا, مگر اتنا آپ سے ضرور کہوں گا, میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں گے کہ کوٹیکنا کا جو کیس تھا وہ کس نوعیت کا تھا اور کیوں بنایا گیا. وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں بنایا گیا اور سیف الرحمان نے بنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو بیگم صاحبہ کو اور آصف علی زرداری کو اور دوسروں کو اس کیس میں سزا دینے کی کوشش کی گئی, اور وہ کیس جب سزا ہوئی تو پیپلز پارٹی کورٹ میں گئی, اور جب بڑا ہائپ کریٹ ہوا وہاں پہ ایک کیسٹ ملا جو کورٹ میں دیا گیا. کیوں ملک صاحب کا کیس تھا جی, ملک قیوم اور جج تھا, سیف الرحمان صاحب ان کو فون کر کے کہہ رہے تھے جلدی فیصلہ کریں, تو کورٹ نے اس کو سن کے ایک فیصلہ کیا اور یہ کیس واپس بھیجا, اور قیوم کو کہا گیا, ان دونوں ججز کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ادروائز کوئی ہم ایکشن لیں گے. استعفیٰ تو ان لوگوں نے دے دیا اور چلے بھی گئے, مگر جن سے بات ہوئی, جن لوگوں نے ڈائریکشنز دی, وہ کل بھی اقتدار میں تھے, آج بھی اقتدار میں ہے. ان کے اوپر کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ بھائی تم نے اس معاملے میں عدلیہ کے اندر عدلیہ سے اس قسم کا کام کروایا. وہ ان کو کہنا چاہیے تھا جو نہیں ہوا, اور آج بھی وہ موجود ہیں. چلو, یہ اس بات کے علاوہ اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے اب, یا میاں نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے, یا میاں شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس کیسٹ میں میاں نواز شریف کا کوئی بھی آواز یا کوئی چیز نہیں تھی. اس میں بات چیت سیف الرحمان کی تھی اور ملک قیوم کی, اور پھر اس میں ڈائریکشنز تھی اپنا چیف منسٹر کی. تو وہ چیز اپنی جگہ پہ ہوئی, اور اس کے بعد یہ کیس چلا, اور بی بی کے پاس بی بی جلا وطن ہوئی اور بی بی وہاں رہی. تو پھر اس کیس کو سوئز کیس میں بھی ڈالا گیا. بی بی نے بڑا ہی اس میں کیس کو فیس کیا, اور اس کیس پہ اسٹیٹ کے 30 کروڑ روپے اس وقت خرچ ہو چکے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, خصوصی رقم تھی جو سیف الرحمان صاحب نے لی تھی اور وزیر خزانہ سے حاصل کی تھی, لی گئی تھی اور خرچ کیا گیا. اس کے بعد اس کیس کو چلانا پڑا. اس کیس میں بی بی کی کو سزا بھی نیپسن شاہ میں ہوئی, اور بی بی کو جب یہ پتہ پڑا تو اس کیس میں بی بی وہاں گئی, اور پھر آرگیومنٹس ہوئے, بات چیت ہوئی. اس سونار کو بھی بلایا گیا جو سونے کا, ایک بڑی ہسٹری ہے, اور وہ آئے, اور 18 سال پرانا کیس ہے, 18 سال چلتا رہا ان لوگوں نے. پھر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ سیف الرحمان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اب اس کیس کے ختم ہونے کے بعد, یا اس کیس میں جو بھی اور انوالو ہے. ملک قیوم صاحب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, اور میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, ان کا پیغام آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس کیس کے بعد جو ہے وہ جو اس کیس میں انوالو ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اس میں انکلوڈنگ میاں شہباز شریف, جو بھی ہے. میں نے خود سنی نہیں ہے, مگر میاں شہباز شریف کا بھی ذکر اس میں ہے کہ وہ انوالو تھے, مگر میاں نواز شریف نہیں تھے اس میں. تو سر وہ تو کیس تو آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ عدالت چلے جائیں. آپ وہ دیکھتے ہیں, عدالت آپ کو بری کر چکی ہے, ہم اس کو دیکھتے جس ہیں کو ملزم کہا جا رہا تھا 18 سال سے, اسی عدالت نے, پاکستان کی عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو اب آپ جن لوگوں نے کیس بنایا ان کے خلاف چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے لیے اٹارنی جنرل نے سوئز اٹارنی جنرل کو لکھا تھا کہ یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے. جب ایک این آر او بنا تھا اس کے تحت لکھا گیا تھا, اور این آر او کی بڑی ہسٹری ہے, تو اس میں لکھا گیا تھا. اور اس کیس میں اس نے جب اپنا, کیونکہ وہاں کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جب اٹارنی جنرل الاؤ کرتا ہے پٹیشن کو تو پھر جج سنتا ہے. جب وہ اٹارنی جنرل کے پاس لیٹر گیا تو اٹارنی جنرل نے 15-16 پیجز پہ وہ جو لیٹر لکھا ہے اس میں اس کیس کو اس نے ڈسٹرائے کیا, اور یہاں تک بھی کہہ دیا آخر میں کہ اس گورنمنٹ آف پاکستان کی کہنے کے بعد, پالیسیز کے بعد, ڈیسیشن کے بعد تو یہ کیس ختم کیا جا سکتا ہے, مگر
मुझे इस केस के फाइल में से कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। लेकिन सर अगर फर्ज करें एविडेंस थे भी, लेकिन अब तो क्योंकि केस खत्म हो चुका है, केस फाइल बंद हो गई है और अदालत ने मियां आसफ अली जरदारी साहब को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, वो 30 करोड़ रुपए का क्या बनेगा जो कौम के खर्च हो गए सारे केस पे? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोर्ट में जाना चाहिए और सैफुर रहमान साहब से वो 30 करोड़ रुपए वसूल करके सरकारी खजाने में जमा। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ये काम ज़रूर करेंगे कि सैफुर रहमान को नोटिस देंगे कि 30 करोड़ कौमी ख़जाने में जमा किया जाए। और इस मामले में इसाक डार भी बड़े तेज़ हैं, वो भी, क्योंकि मुल्क में नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका हुआ एक ही वक्त में ये जो 40 अरब का टैक्स लग रहा है उसमें ये 30 करोड़ भी आ जाएंगे, तो कुछ रेशो पब्लिक से कम वजन कम होगा। ठीक। अच्छा, डॉक्टर आसम हुसैन साहब की क्योंकि 90 दिन की जो उनका रिमांड था वो कल ख़त्म हो रहा है और कल वो यकीनन नैब को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और नैब ने केस भी बना लिया उनके खिलाफ। तो आप ये समझते हैं कि जब ये नैब में केस चला जाएगा तो डॉक्टर आसम हुसैन साहब भी उसी तरह बरी हो जाएंगे और वो जो करप्शन के केसेस उनके खिलाफ बन रहे थे या फौज ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे वो ख़त्म हो जाएंगे? देखें, इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम को साबित करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पकड़ के इल्ज़ाम लगा दिया, पहले इल्ज़ाम उन पे लगा कि इसने बड़ी करप्शंस की हैं और ये पैसे दहशतगर्दों को दिए गए, और फिर इल्ज़ाम लगा कि ये हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको ये दिए गए। इस किस्म के पहले उसी केस को उसी सेंस से रेंजर्स ने लिया, उसी जो नई अमेंडमेंट्स हमने की थी। अब नेचुरली 90 डेज़ के बाद वो नेब के पास आए, अब नेब को वो केस साबित करने पड़ेंगे, जो मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं कोर्ट क्या कहती है। मैं इसमें तो 18 साल में आसफ अली जरदारी साहब का केस नहीं साबित कर सकी, तो डॉक्टर आसम हुसैन साहब का केस कैसे करेगी नैब? तो देखना ये है कि अभी कोर्ट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनका काम है। मैं अभी जाके कोर्ट में केस हो अभी कुछ अपना व्यू पॉइंट दूं तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि वो क्या। डॉक्टर आसम के साथ ज्यादती हुई आप समझते हैं? देखते हैं, जिन केसों में उनको पकड़ा गया मैं समझता हूँ वो हमारे साथ रहे, वो उन केसों में उसकी कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई थी और नहीं मैं समझता हूँ कि होगी। अच्छा, ये फरमाइए कि आसफ अली जरदारी साहब, क्योंकि बीबी की बरसी आ रही है 27 दिसंबर को, तो उससे पहले आसफ अली जरदारी साहब वापस तशरीफ लाएंगे दुबई से या वहीं रहेंगे? मैं समझता हूँ उसका इलाज जैसे ही कंप्लीट होगा आएंगे, मगर कंफर्म नहीं है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो 3-4 महीने वहाँ 5 महीने रहे हैं इलाज के लिए। तो अब ज़ेरे इलाज है बेसिकली। ठीक, लेकिन मीटिंग्स वगैरह तो करते रहे और अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी मीटिंग करते हैं। मैं अभी एक मरतबा गया था, मैं गया था, बैठा था, तो 3-4 डॉक्टरों की टीम आई थी जो 1-1.5 घंटे के लिए उठ के गए थे और उन डॉक्टरों ने उसका फिर मुआयना किया घर पे। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और अगर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है डॉक्टर आसम हुसैन की तरह, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा और ये नहीं करना चाहिए किसी लेवल? देखें, पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। आसफ अली जरदारी साहब को 11 साल तो पहले भी जेल में डाला गया, उसके बाद उन्हीं हुकूमतों ने उनके साथ डायलॉग किया कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी को देने के चाहते हैं और इन टर्म्स कंडीशंस पे ये बातें भी, और पीपल्स पार्टी के साथ फिर एनआरओ भी बातचीत हुई। तो ऐसा कोई खतरा है सर? क्यों कहा यह जा रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब के साथ भी वही सलूक हो सकता है जो डॉक्टर आसम हुसैन साहब के साथ हुआ, और अब तो डॉक्टर आसम हुसैन साहब की कुछ स्टेटमेंट्स का भी हवाला दिया जाता है कि उन्होंने कुछ लिख के भी दे दिया है। इस मुल्क में जावेद साहब, आप बकरी को मार मार के कहलवा सकते हैं या हाथी को मार मार के कहलवा सकते हो कि मैं बकरी हूँ, या बकरी को मार मार के कहलवा सकते हैं मैं हाथी हूँ। तो इसमें में जब किसी के कोई हाथ में होता है जो चाहे कर लो, ये इस चीज़ का जब कंटिन्यूटी तब होती है जब कोर्ट में केस चलता है। ठीक है, उसके बाद ही इसकी एविडेंस और उनकी बात। अगर कोई स्टेटमेंट्स अगर फर्ज कीजिए रेंजर्स हैंड ओवर कर भी देती है नैब को, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो जब नैब में जाएगा या कोर्ट में जाएगा तो वो साबित नहीं किया जा सकेगा। आपका ख्याल ये इन स्टेटमेंट्स का बड़ा मुश्किल होता है इसमें खास? मैं ब्रेक लेनी शाह साहब दोबारा आपके सामने रखूंगा कि आसफ अली जरदारी साहब दुबई में बैठ के पार्टी क्यों चला रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से अगर पार्टी चलेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम में क्या फर्क रह जाएगा। छोटी ब्रेक के बाद आपके साथ।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पार्टी को दुबई से चलाया जा रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरपर्सन है, वहाँ पे हैं, वहाँ मीटिंग करनी होती है तो चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट को बुलवा लेते हैं सिंध की और वहाँ पे जाके मीटिंग होती है। एक वजीर है आपको शजील मेमन साहब, उन्होंने अपना दफ्तर ही वहाँ खोल रही है, वो अपने सेक्रेटरीज को वहाँ बुलवा लेते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये एक ट्रू सेंस है डेमोक्रेसी की कि एक इतनी बड़ी पार्टी और उसका चेयरमैन या उसका वाइस चेयरमैन या उनका जो को चेयरपर्सन बाहर बैठ के पार्टी को चला रहा हो? जज साहब, असल में पार्टी जहाँ से ही चल रही है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस वक्त चेयरमैन खुद एक्टिवली अपनी मीटिंगें यहाँ कर रहे हैं, जिनको हम सबको बुलाते हैं। अभी सिंध में भी उनका प्रोग्राम चला। अभी रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये प्लान बना है कि वो पंजाब में भी आफ्टर दिसंबर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो वो अवाम से रब्ते के इमाम के लिए निकलेंगे। लेकिन सर, कायम अली शाह साहब क्यों चले जाते दुबई पे? वो चीफ मिनिस्टर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को वहाँ तलब कर लें, कैबिनेट को बुलवा लें। पार्टी के को चेयरमैन तो है ना, बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं आ सकते तो बात तो कर सकते हैं। तो सर टेलीफोन पे कर लें, वो पूरी कैबिनेट को बुलवाने की और सीनियर चीफ मिनिस्टर को बुलवाने की। सर, कई मरतबा ऐसी मीटिंग हुई जिसमें कैबिनेट के वजीर भी वहाँ पे। जहाँ तक मेरे इल्म में फुल कैबिनेट कभी नहीं गई है तो एक दो वजीर गए या उनके साथ। सर, वही वजीर कैबिनेट है। जब अगर सारे 3-4 वज़रा ही तो कैबिनेट है। जाहिर साहब, जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो सिस्टम को चलाने के लिए जब तक इंशाअल्लाह ताला तो सर चेयरमैन है ना, चेयरमैन मेरा है, उनको चलाना चाहिए। मीटिंग करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो चीफ मिनिस्टर को बुला के। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन ने पार्टी संभाल ली है और को चेयरपर्सन ने गवर्नमेंट संभाल ली है सिंध की? नहीं, ऐसे मामला चलेगा नहीं। दोनों काम एक ही को करने हैं, या चेयरमैन करे या को चेयरमैन करे। शजील मेमन साहब, अगर फर्ज कीजिए सर कि उनकी कोई मजबूरी है कि वो वहां से वापस नहीं आ सकते, हो सकता है वो भी अलील हो या उनका कोई प्रॉब्लम हो, तो सर उनसे वजारत वापस क्यों नहीं ले लेते आप? मैं समझता हूँ इस वक्त वो वजारत चीफ मिनिस्टर ही चला रहे हैं। तो फिर पोर्टफोलियो भी वापस लेना सर उनसे, क्योंकि वो सिंध में है और वजीर है और होना चाहिए। जो आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आते, उसने मुझे खुद कहा था कि मैं इसकी इस्तीफा देने के लिए कह दिया है कि मेरी इस्तीफा कबूल की जाए और मैं ये पोर्टफोलियो यहाँ से बैठ के चलाना नहीं चाहता। और होना भी ये चाहिए कि उसकी वहाँ मौजूदगी और पाकिस्तान में नहीं आना या पाकिस्तान में किसी वजूहत के बिना पे नहीं आना, क्योंकि एक केस ऐसा हुआ है जिससे उसे ये है कि उनको कोई इन्वॉल्व न किया जाए। किडनैपिंग का केस था जिसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है और जिनका किडनैपिंग हुई थी वो भी मेमून है, वो भी मेमून है, तो उनको कोई फंसाने की कोशिश करे। मगर जो मालकान है वो भी समझते हैं कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर उसको खौफ है उस वजह से, बाकी कोई ऐसी वजह नहीं है, वो नहीं आते। और वो 2-3 मरतबा खुद भी कहा है कि मुझे यहाँ बैठ के मिनिस्ट्री नहीं चलाना। अब मिनिस्ट्री वो चलाते नहीं है, मिनिस्ट्री ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर ही चलाते हैं आजकल। ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन साहब एक्टिव, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ जो आप कहते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए शजील मेमन साहब। इस्तीफा दे के अपनी गवर्नेंस शो करे। ये गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस का एक हिस्सा बन जाता है ना कि मिनिस्टर यहाँ मौजूद नहीं है, सेक्रेटरी वहाँ जाता है, तो उनको देखे ये बेहतर है कि वो वहाँ बैठ जाए, जब आ जाए तो फिर नया ओथ ले लें, कोई मसला नहीं है। सर, बिलावल साहब की बहुत अच्छी लॉन्चिंग हुई बल्दियाती इलेक्शंस के दरमियान, लेकिन ये एक अजीब सी बात दोहराई जा रही है और बहुत से लोग तबसरा कर रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ पार्टी हार गई। तो वर्कर्स क्या बिलावल साहब को तस्लीम नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जा गए वो बदीन में देखिए, बदीन तो आपका किला था, वहाँ पे बहुत मार पड़ी सर। ठट्ठा में गए और सजावल में गए और बस स्लिप किया है, ऐसी बात नहीं तो है। सर बदीन में क्यों नहीं? बदीन में गए, और मगर मैं बदीन के लिए ये कहता हूँ कि वहाँ इतना हमें हाइप क्रिएट करना नहीं चाहिए था। बड़े लो प्रोफाइल वे में हमें वो इलेक्शन लड़ना चाहिए था। बदीन पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना एक ये समझ लें कि आपका किला था, वो किला था, किला ही कह सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इलेक्शन लड़े थे तो ठट्ठा, बदीन और जाम उधर से लाड़काना से इलेक्शन लड़े थे और तीनों सीटें जीती थी बड़ी अक्सरियत से। चलो वो तो जमाना एक और था। इसका मतलब ये हुआ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब वहाँ पे पार्टी से ज्यादा तगड़े हैं और उन्होंने पार्टी से बाहर रह के भी पार्टी के पूरी अपोजिशन के बावजूद वहाँ से वो जीते। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे कोई तबसरा करना चाहता हूँ, नहीं कोई बात करना चाहता हूँ। ये हमारी सिर्फ कमज़ोरी ज़रूर है कि हमने हाइप ज़्यादा क्रिएट की। हाइप जब भी क्रिएट होती है जावेद साहब
میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں اس میں مخالف کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے تو آپ کے دروازے بند ہیں یقیناً، لیکن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کے لیے، صاحبہ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ نے دروازے کلوز کیے؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ لیڈرشپ بہتر جانتی ہے مجھ سے کہ ان کے لیے دروازے بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں، مگر جہاں تک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہیں، جلسے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی راستے الگ ہی نظر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ ذوالفقار مرزا صاحب کیونکہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں اور وہ کراچی بیٹھ کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری لیگ کو نکالوں گا، زرداری کی جو پارٹی ہے اس کو فارغ کروں گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب مستقبل میں خطرہ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں ذوالفقار بھٹو کی پارٹی ہے، یہ اس کا بیٹا ان کا پوتا ہی سنبھالے گا، بلاول بھٹو ہی سنبھالے گا، اور ایسے سب نے سوچا ہے اور ان کی رائٹ بنتا ہے سوچنا کہ اپنی. مجھے یاد ہے کہ غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے بہت ہی ذہین اور بہت ہی شریف اور بہت ہی قابل اعتماد آدمی تھے اور بہت ہی ملنسار آدمی تھے، اور جب چھوڑ کے گئے اور وہ بھی ناکام ہو گئے، جس نے پارٹی چھوڑی وہ ناکام ہوا. جب وہ بی بی آنے سے پہلے سندھ کا ٹور نکالا تو ان کی گاڑی کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، اسپیشلی رانی پور پہ، اور جب لوگوں نے اس کو کہا کہ جی بس سب کچھ آپ ہیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ کا ریسیپشن ہوا ہے، لوگ امنڈ آئے آپ کے پیچھے. اس وقت اس نے ٹور سندھ کا کیا تھا اور اینڈ آ کے سکھر میں کیا تھا میرے پاس. تو ایسا سمندر تھا لوگوں کا، سمندر، کوئی کسی کی چیز کنٹرول میں نہیں تھی، اور اسٹیج تک میں نہیں لا سکا اس کو. پھر وہ گاڑی سے ہی کھڑے ہو کے اس نے خطاب کیا. اس کے جب پارٹی چھوڑ کے وہ جب رانی پور پھر سندھ کے ٹور پہ گیا تو اس رانی پور کے علاقے میں جہاں اس کی گاڑی کندھے میں اٹھی تھی، جو ان کے ساتھ شریف آدمی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، میں سمجھتا ہوں میں اس سین کو نہیں بھول سکتا. آپ کا خیال یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب مستقبل کے جتوئی ثابت ہو سکتے؟ نہیں، میں جتوئی کیوں کہوں یا ذوالفقار مرزا کو جتوئی کیوں بناؤں، ان کی اپنی سیاست ہے، جتوئی صاحب کی اپنی سیاست تھی. مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ گراس روٹیڈ پارٹی ہے اور لوگوں سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے. لوگ ناراض، ہم پہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، مگر جب لوگ مڑ کے ہمارے مخالفین کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے جائیں گے، پیپلز پارٹی گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، کام کرا سکتے ہیں، مگر ان کے پاس ہو جانے کے لیے تو اپنا سر پھڑوا کے پھر واپس آئیں گے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ نکلے ہیں، اس سے یوں ثابت ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے یوں کہ وفاق کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی دو جو مرحلے وہاں پہ آپ نے بہت سیٹس حاصل کی، آپ لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، بہت ساری جگہوں پہ کلین سویپ بھی کیا آپ نے. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون وہ مضبوط ہوگی، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا تک محدود ہوگی، بلوچستان کی پارٹیز جو ہیں بلوچستان میں تگڑی ہوگی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بلدیاتی الیکشن وفاق کو کمزور کر رہا ہے اور اب کوئی نیشنل پارٹی نہیں رہی پاکستان میں؟ یار بھائی میری ایک بات، آپ ماشاءاللہ اب سیاست کو آپ لوگ اتنا قریب سے دیکھ رہے ہو، اتنا اس کو باریک بینی کے ساتھ ویٹ کر رہے ہو. بلدیاتی الیکشنز کو میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا پیرامیٹرز نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی جو ہے بس اب اس کا گراف بڑھ چڑھ گیا ہے اور اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں. سر صوبائی پارٹیاں ہوگی نا ساری، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ اور وہ ایک صوبے تک محدود ہوگی، پیپلز پارٹی ایک صوبے تک محدود ہوگی. نہیں سن لینا، میں نہیں مانتا اس چیز کو. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے فرسٹ ٹائم ہے کہ ان کے زمانے میں یہ، اس سے پہلے ڈکٹیٹرز کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور وہ ڈکٹیٹر اس لیے بناتے تھے کہ ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی چاہیے تھی اور اس میں بیٹھ کے وہ اپنا پھر حکومت چلاتے تھے، اس لیے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے جو یہ ہوا ہے. اصل میں آپ بلوچستان کی گورنمنٹ کو دیکھ لو کہ بلوچستان میں کون جیتے ہیں. وہی حکومت جیتی ہے جو بیٹھی ہے، ٹھیک صحیح، چاہے ان کا کوئی ووٹ ہے نہیں ہے، جیتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں آپ جیتے ہیں، خیبر پختونخوا کو دیکھ لو، پی ٹی آئی جیتی ہے، پی ٹی آئی جیتی ہے. ٹھیک. وہ پنجاب میں نون لیگ ہوگی، پنجاب میں، سندھ میں آپ ہو گئے. پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. پنجاب میں ظاہراً فرسٹ نمبر پہ
नून लीग नून लीग जीती है। सेकंड नंबर पे पंजाब का आज़ाद है। पंजाब का जो रिजल्ट है वो बड़ा डिस्टर्ब करता है कि उसमें नंबर टू भी ऐसे नहीं कि उनने 950 वोट लिए और इंडिपेंडेंट ने 400 लिए और तीसरे नंबर के 300 हुए या 250 हुए। वो नेक टू नेक है, वो आजाद वो नेक टू बिल्कुल नेक, करीब नेक टू नेक। ये और अलार्मिंग है नून लीग के लिए। हाँ, नून लीग के लिए ये चीज सिंध में नहीं है, ये चीज खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है, बलूचिस्तान में नहीं हुई है। ये जो आजाद वाला प्रॉब्लम है ये मुझे कहीं डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई ये क्यों आया वो नवाज शरीफ से। मैं ब्रेक लेनी शाह साहब, लेकिन ये क्यों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मियां नवाज शरीफ के लिए, और उनको सोचना चाहिए कि ये जो क्यों है आने वाले दिनों में इनके लिए खतरा भी बन सकता है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब, ये आप क्यों की बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंजाब में क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे और आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं उनके, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को खुद या उसकी पार्टी को खुद बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो रिजल्ट आया है ये उनके हक में है या उसके मुखालिफ है। ये तो बात समझ में आ गई कि चलो हुकूमत में है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि इस रिजल्ट के बाद जो इंडिपेंडेंट लोग मंडी बहाउद्दीन में या सरगोदा में आए हैं और जिस तरीके से उनके रिजल्टों को बैठ के चेंज किया जा रहा है, कल भी मुझे नदीम अफजल चंद ने बताया कि हमें 2-3 दिन से हमने डेरा डाला हुआ है और सारे इंडिपेंडेंट जितने लोग हैं उनके रिजल्ट चेंज करने के अहकाम आता है, चेंज करो। जहां जहां से नून लीग हारी है वहां पे बदले जा रहे हैं वो बिल्कुल बतौल नहीं है, बिल्कुल क्लियर आजकल मैसेज है और ये मैसेज मुस्लिम लीग के लिए अच्छे नहीं है। ताकत के बलबूते पे अगर वो अपने रिजल्ट चेंज करेंगे और दिखाएंगे हम जीत गए, हारी हुई चीज को जीत के शो करना सबसे बड़ी हार होती है। अच्छा, ये फरमाएं कि इन बल्दियाती इलेक्शनों के दौरान ही इमरान खान साहब ने दावा किया कि अब पाकिस्तान में नेशनल पार्टी सिर्फ एक ही बची है और उसका नाम है पीटीआई। तो वो ये समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद होगी, मियां नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब तक महदूद होगी, सिर्फ पीटीआई रह गई है जो चारों सूबों में है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम तो पीपल्स पार्टी का आ गया है और काफ़ी नाज़िम भी 50-55 के करीब भी आ गए हैं। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नंबर डायरेक्ट आए हैं, काफ़ी नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट आए हैं जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। और नवाज शरीफ से उस जो नेशनल पार्टी अपने आप को कहती है इमरान खान, उनसे पूछें कि आपने सारी सिंध में कितने सीटें जीती हैं? 4 या 5 सीटें टोटल जीती हैं और बलूचिस्तान में उनके पास 1 सीट है। कहाँ जीता है? पंजाब में उसकी पोजीशन 3rd पोजीशन पे आ गया है वो। तो किस तरीके से वो अपने आप को नेशनल पार्टी समझता है? नेशनल पार्टी समझने के लिए अभी अगर वो लाहौर में इलेक्शन लड़ता है और जिस तरीके से उसने रूल्स एंड रेगुलेशन और जो इलेक्शन रूल से 122 की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, उसमें तो है पैसा दोनों ने इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ, दोनों पार्टीज की तरफ से रूल्स की वायलेशन हुआ है। और जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने वहां अपनी कमजोरी का सबूत दिया है और मैं समझता हूँ पहले जितनी भी इलेक्शन कमीशन थी इतनी कमजोर नजर नहीं आई जितनी इस मरतबा। शाह साहब ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम की तरफ से एक दावा है कि 5 दिसंबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं ये एक नए सूबे का वो समझते हैं कि रेफरेंडम है और उनका ये कहना है कि अगर एमक्यूएम जीत गई, जिस तरह वो जीत रही है, हैदराबाद में भी जीती और उसके बाद अब कराची की तरफ जा रहे हैं वो, और उनका ये कहना है कि अगर हम जीत गए तो हम नए सूबे की तहरीक चलाएंगे। तो अगर वो नए सूबे की तहरीक चलाते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा सिंध में। तो आप ये समझते हैं वाकई नए सूबे का रेफरेंडम है? इससे पहले भी सिंधु देश की तहरीकें चली और अल्ताफ हुसैन जाके GMC से गले लगा और फिर ये चीज़ें बनाते रहे। ये नया सूबा ऐसे नहीं बनता, उसके लिए हमारे पास आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके तहत बनता है। अगर सिंध असेंबली अगर कभी किसी सूबे के लिए रिकमेंडेशन करेगी तो जो फैसला कानून और आइन के तहत होना है वो होगा। बाकी ये जो MQM कहते हैं नए सूबे की तहरीक होगी,
وہ 5 तारीख को उनको पता पड़ जाएगा कि नए सूबे की तहरीक क्या होती है। तो आप अपोजिशन करेंगे अगर वो फर्ज कीजिए कोई कैसे? कहते possible हैं नहीं कि है, लोगों ने हमें कानून- वोट दिया तब दे दिया, अब हम नया सूबा बनाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका ये मौक़िफ़ काबिल कबूल होगा? अजीज़ाबाद के घर नंबर 90 जो है उसमें अपना सूबे का डिक्लेयर कर दें अगर घर में बैठ के, तो अलग बात है, अदरवाइज तो नया सूबा बन नहीं सकता और नहीं हम बनने देंगे, नहीं वो बन सकता है, नहीं कानून उसकी इजाज़त देता है, नहीं आइन में कोई ऐसा कोई रास्ता है। ठीक। अच्छा ये फरमाइए कि ये मियां नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि हमारी टांगें खींचना बंद करें, आप उनकी टांगें आप खींच रहे हैं या इमरान खान साहब खींच रहे हैं? मैं समझता हूँ इमरान खान की खुद टांगे खींच के उसको कंटेनर से नीचे गिरा दिया गया, तो ये तो नज़र नहीं आता इमरान खान उसकी टांगे खींच रहा है। हमने उनकी टांगों को मजबूत किया है, खड़ा किया है, वो स्टैंड लेके उसको बचाया और जमहूरियत को बचाया, पार्लियामेंट को बचाया। अब किसकी तरफ उसका इशारा है ये मुझे समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ इशारा है, फौज की तरफ है या किसी और अदारा की तरफ है या हिंदुस्तान की तरफ है या अफगानिस्तान की तरफ है, कोई और मुल्क इनकी टांग खींच रहा है, ये खुद वो बता सकते हैं कि आखिर वो कौन है जो इन हालात में उसकी टांगें खींच रहा है। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं हमें काम करने दें, उनको हमारी टांगें ना खींचें, तो किससे खतरा है उनको? 2/3 मेजॉरिटी उसको मिली हुई है, 2/3 मेजॉरिटी के बाद भी उसकी टांगें कांप रही होंगी, खींच कोई नहीं रहा है। अच्छा ये फरमाइए कि फौज और हुकूमत आप दोनों को एक सफ़े पे आपको नजर आ रही हैं, दोनों देख रहे हैं आप इन दोनों को, या कोई इख्तलाफात हैं दरमियान? होना तो एक ही सफ़े पे चाहिए मगर अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से जिस किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसने फौज ने कोर कमांडर्स मीटिंग में जो बात हुई उसका जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब आया, वो जवाब नहीं आना चाहिए था, वो उस पर बैठ के बात हो। अच्छा सर, अगर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं तो आप किस शरीफ का साथ देंगे? हम तो डेमोक्रेसी का साथ देंगे, हम तो पार्लियामेंट का साथ देंगे, हम तो पार्लियामेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो कुछ पार्टी ने किया है आज तक, लड़े हैं, जाने दिए, नुकसान हुआ है, जेलें देखें, कोड़े देखें, इस पार्टी में देख लें, घूम के देख लें, बड़े वो शोर से देख लें कि 48 साल पाकिस्तान की लाइफ हो गई है पीपल्स पार्टी की, किस पार्टी ने सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए अपनी जानें दी, कोड़े देखे, जेलों में डाले? कौन सी पार्टी गई है? एक पार्टी को थोड़े वक्त के लिए जेल में डाला, फिर वो सुरूर लेने चले गए और कोई किसी को। इसका मतलब ये हो कि आप भी सिविलियन शरीफ का साथ है? नहीं, सिविलियन शरीफ का साथ नहीं है, हम डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत का साथ, जमहूरियत का साथ देंगे। बिल्कुल। और हम ये अदारों को भी कहेंगे कि हर अदारा अपनी जगह पे मजबूत, कि ये पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, जो मुसलमानों की इस वक्त दुनिया में पोजीशन है, और पाकिस्तान माशाल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों की एक लीड कर रहा है। अब कर रहा है नहीं कर रहा है, नवाज शरीफ में वो जुर्रत है या नहीं है? जब भुट्टो शहीद ने बीबी ने जिस तरीके से OIC को एक्टिव किया था, OIC के थ्रू दुनिया के मुसलमानों को, उम्मत मुसलमान को एक जगह पे जमा किया, वो मैं नहीं देखता कि इस वक्त। इसका मतलब जमहूरियत का साथ देंगे। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब गुफ्तगू आपने सारी सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।